بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور کی پہلی ٹورزم شاہراہ واہگہ ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فوٹیج ایکس پر شیئر کر دی ہے۔ لاہور کی پہلی ٹورزم شاہراہ واہگہ ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ قائد اعظم انٹرچینج سے واہگہ بارڈر تک 13 کلومیٹر طویل اس منصوبے پر اب تک 28 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ شاہراہ کو دونوں طرف سے وسیع کر کے 68 فٹ چوڑا بنایا گیا ہے۔ دونوں جانب 20 فٹ چوڑی سروس روڈز بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ منصوبے میں 22 کلومیٹر سے زائد طویل RCC ڈرینیج سسٹم، 10 کلومیٹر آرائشی دیوار اور جدید سولر اسٹریٹ لائٹ شامل ہیں۔ ہیریٹیج منصوبہ جنوری میں شروع ہوا اور تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھا، جس سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھنے کے لیے آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو عالمی معیار کی سفری سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو پاکستان آمد پر مقامی ثقافت، سیاحت اور خوبصورتی کے منفرد رنگ نظر آئیں گے۔ شاہراہ پر قومی ہیروز کے پورٹریٹس اور روشنیوں سے مزین خوبصورت رنگ مسافروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کروڑوں سے قائم ہونے والا بائیک لین منصوبہ مؤثر ثابت نہ ہوا۔ فیروز پور روڈ پر بائیک لین بنا دی گئی مگر استعمال نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کروڑوں روپے سے قائم ہونے والا بائیک لین منصوبہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ فیروز پور روڈ پر بائیک لین تو قائم کر دی گئی مگر استعمال نہ ہو سکی۔ بائیک لین کا قیام ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بننے لگا اور منصوبہ تباہ ہو گیا۔ ٹریفک پولیس موٹر سائیکل سوار کو بائیک لین استعمال کرانے میں ناکام ہو گئی۔ بائیک لین استعمال نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے پر 8 کروڑ سے زائد کی لاگت آئی تھی۔ چینی کی قلت اور قیمتوں کا بحران بدستور برقرار ہے۔ شہر میں چینی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ گڑی شاہو، ریلوے کالونی، بی بی پاک دامن سمیت ملحقہ علاقوں میں چینی غائب۔ شہری سرکاری نرخوں پر چینی کو ترسنے لگے۔ چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چینی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں ہے۔ گڑی شاہو، ریلوے کالونی، بی بی پاک دامن، کلا گجر سنگھ، عبدالکریم روڈ سمیت ملحقہ علاقوں میں چینی دستیاب ہی نہیں۔ شہر بھر میں چینی اب بھی 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ گلی محلوں کی دکانوں پر چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر پا رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی مل نہیں رہی، اگر کہیں مل بھی رہی ہے تو مہنگی ہے۔ حکومت چینی کی قیمت کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ میں چینی کی مستقل، شفاف اور بھرپور فراہمی یقینی بنانے تک قیمتوں میں کمی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، سرکاری نرخوں پر سبزی فروخت کرنا ناممکن ہو گیا۔ دکاندار منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ ماڈل کارٹس پر بھی خریداروں سے 50 سے 100 روپے اضافی بٹورے جانے لگے۔ آلو کی سرکاری قیمت 80 مگر 100 روپے کلو بک رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 55 مگر 70۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 82 مگر 100 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن کی سرکاری قیمت 200 مگر 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک کی سرکاری قیمت 460 مگر 500 تک فروخت ہو رہا ہے۔ بینگن کی سرکاری قیمت 85 مگر 120۔ بند گوبھی کی سرکاری قیمت 105 مگر 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہر کے ماڈل کارٹس پر خریداروں سے 50 سے 100 روپے اضافی بٹورے جانے لگے۔ کیلے کا سرکاری ریٹ 192 جبکہ 220 روپے درجن میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انگور 400 کے بجائے 500، سیب 200 کے بجائے 250 میں فروخت ہونے لگا۔ آلو 70 کے بجائے 80، کریلا 160 کے بجائے 200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ بینگن 80 کے بجائے 200، بھنڈی 160 کے بجائے 180 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شملہ مرچ 200 کے بجائے 250 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں طلباء کے خوابوں کو پنجاب کے مستقبل کی دھڑکن قرار دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے 80,000 نوجوان ذہنوں کو آگے بڑھنے کے پروں سے نوازا گیا ہے، جن میں سے 50,000 طلباء پہلے ہی اسکالرشپس وصول کر رہے ہیں، جبکہ 30,000 مزید کو جلد اسکالرشپ دی جائے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق یہ پروگرام گزشتہ سال آغاز سے اب تک 67 مستقبل ساز شعبوں میں مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ہونہار کے اگلے مرحلے کے لیے پورٹل کھل چکا ہے، لہٰذا طلباء یقین کے ساتھ درخواست دیں، جذبے کے ساتھ پڑھائی کریں اور کبھی یقین نہ چھوڑیں کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی ہمیشہ میرا سب سے بڑا فخر رہے گا۔ NA 129 ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے آخری روز تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی۔
रिटर्निंग ऑफिसर N129 उस्मान गनी के दफ्तर क्रिकेट हाउस जेल रोड में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया गया। हमाद अजहर, हाफिज मियां नमान, आसिफ नागरा, मियां वैस अंजुम, महर इश्तियाक, ताहिर हबीब, राना मशहूद, अरसलान अहमद और असद करीम तलवार समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 11 अगस्त को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को 26 अगस्त को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। N129 में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। मियां अजहर की विफात के बाइस N129 की नशिस्त खाली हुई थी। N129 का ज़िमनी इलेक्शन टिकट एक उम्मीदवार 3 मुस्लिम लीग नून की क़यादत इम्तिहान में पड़ गई। राना मशहूद, महर इश्तियाक अहमद और हाफिज मियां मोहम्मद नुमान सामने आ गए। तीनों नाम मियां नवाज शरीफ और पार्लिमानी बोर्ड को इरसाल। उम्मीदवार का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से तीनों नाम पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को अरसाल कर दिए गए हैं। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में आजमोदा उम्मीदवारों को ही मौका देने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जराये के मुताबिक इब्तदाई मुशावरत के बाद उम्मीदवारों का इंतखाब उनके सियासी करियर की बुनियाद पर किया गया है। राना मशहूद अहमद खान 4 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली, महर इश्तियाक अहमद 3 मरतबा MPA और एक बार MNA, जबकि हाफिज मियां नुमान 1 मरतबा MPA मुंतखब हो चुके हैं। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में तीनों उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पार्टी टिकट के लिए सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी बाकिर हुसैन और राना इमरान मंज ने भी दरख्वास्त दे रखी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन शौकत कश्मीरी की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। हमजा शहबाज ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, शौकत कश्मीरी ने पार्टी के लिए जेल और सोबतें बर्दाश्त की हैं। ऐसे कारकुनान और रहनुमा किसी भी सियासी जमात का कीमती असासा होते हैं। हमजा शहबाज ने पार्टी के लिए शौकत कश्मीरी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सीनियर लीगी रहनुमा इमरान अली गुराया, राना इमरान मंच, सिबगतुल्लाह सुल्तान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का हल्का N119 का दौरा अहले इलाका के गमो खुशी में शरीक हुए। MPA मलिक वहीद भी हमरा थे। दर्स बड़े मियाँ दरबार पंच पीरा पर हाज़री भी दी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने हल्का N119 का दौरा किया। दर्स बड़े मियाँ के करीब कारकुन की बीवी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। शाहिद खस्ता खान, राना शबकत, जावेद खान, तारिक खान, जमशेद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान मिनट पर जोदत मसूद और आसिम डार के सुसर रियाज और तकी भट्ट की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। UC 134 से साबिका कौंसलर नवाज की भाभी की वफ़ात, UC 134 चौधरी मोहम्मद इसहाक की वफ़ात और बस्ती मोड़ हाजी बाबर के वालिद मियाँ मोहम्मद असलम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। चेयरमैन रमज़ान भट्टी, इरफान भट्टी, असलम बिल्लू, हसीब खान भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी मतलूब जट, चौधरी नसीर अहमद जट की जानिब से तैयार करवाए गए लंगर का जायज़ा लिया। हल्के में कारकुनान के मसाइल सुने। चौधरी शफाकत, चौधरी गुलफाम, चौधरी नदीम अहमद कम्बो, रफाकत अली, भोला जट, शाहिद महमूद विर्क, रमज़ान भट्टी, राना अरशद, मलिक लतीफ़ भी हमरा थे। को बुला के जो आज हमने दौरा किया उसके अंदर हर जगह लोगों ने इस चीज़ की तारीफ़ की कि MD वासा, वाइस चेयरमैन वासा और ये जो सारी बल्दियाती टीम है, इसने बड़ी हिम्मत के साथ तूफ़ानी बारिशों के अंदर मैदान अमल के अंदर रह के पानी के खराज का जल्द से जल्द जो इंतज़ाम कर सकते थे वो किया। जो छतें गिरी थी वहाँ पर भी उनके साथ हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर आए थे और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा ज़ख्मों पर मरहम रखने वाली जमात है और लोगों के दुख दर्द में लोगों के घरों पर जाके उनसे ताज़ियत भी करती है। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के मरकजी दफ्तर N123 और 124 ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी। MPS मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास के हमरा अवामी मसाइल सुने। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर N123 और 124 ख़ियाबान अमीन में किया गया। MPA मियाँ इमरान जावेद, MPA राना अरशद मिनहास ने ख़ासूसी शिरकत की। काहना, निस्टर टाउन, सुयासल, पांडुकी, पुराना कहना, चंद्राई, अटारी, सरोबा, कमाहा के अवाम ने शिकायत के अंबार लगाए। अवामी नुमाइंदों ने जल्द मसाइल हल करने का वादा किया। ये मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में हमारे पास आते हैं, जिनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। काम तो होते रहते हैं, हमेशा काम किए हैं। 2008 से लेके आज तक इनके काम कर रहे हैं। ना काम ख़त्म होते हैं तो ना ही काम रह जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो इनकी मोहब्बत है हमारे साथ वो लाजवाल है। तो इनकी मोहब्बत जो है वो दीदनी है, आपको नज़र आ रही है।
میں इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने इलाके की आवाम का। आपने देखा है कि यहाँ पे हमेशा से जो है कौम की खिदमत की जाती है, अपने हलके के अवाम की खिदमत की जाती है, और ये हमने अपनी पार्टी से सीखा है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था, उनकी ये सोच थी, वो एक हकीकी लीडर हैं पाकिस्तान के। तो आज पाकिस्तान की कौम की, स्पेशली लाहौर के लोगों की जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर बैठ के हल किए जा रहे हैं। राना मुबशर इकबाल साहब हमारे बड़े हैं, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है ये साल से चल रहा है अवामी खिदमत का। राना मुबशर इकबाल साहब जब से सियासत शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरियाँ लगती रही हैं और लोगों के मसाइल हल होते रहे हैं। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो अवामी मसाइल उनकी दहलीज पे हल होते हैं। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अजीज़ुद्दीन अल मारूफ पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासिन ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और मैनेजर दरबार राना एहसान समेत अक़ीदतमंद शरीक हुए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने कहा, सैयद अजीज़ुद्दीन पीर मक्की जुनैदी लाहौर के कदीम अकाबर औलिया में से हैं। औलिया कराम की सरज़मीन बरसगीर में तबलीग के फैसले लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए। बिलाल यासिन ने कहा, इंटर्नशिप पर आने वालों ने मुल्क को तबाह कर दिया था। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न है। सूबाई वज़ीर ने कहा, अपना घर अपनी छत मनसूबा कामयाबी की जानिब गामज़न है, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। तीनों चीज़ों पे हम फोकस्ड हैं। अगर आप टर्न बाय टर्न करें, कल हमारी चेलम से रिलेटेड जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है। हम कल वहाँ पे एक फ्लैग मार्च भी अरेंज किया हुआ है, मैं खुद लीड करूँगा। अगर कोई इशू ना बना तो उसमें हमारी पुलिस सारे के सारे ऑन बोर्ड है, वहाँ पे भी जाएंगे। हजूर दातागंज बख्श क्रूश मुबारक पे बहुत बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड है कि मुझे शेख साहब, मैंने इनसे पूछा था तो आपने गालबन मुझे 1.2 जो 1.5 कह रहे हैं, 1.5 लाख 15 लाख लोग हमारे इसी सराउंडिंग में उन्होंने हजूर दातागंज बख्श के उसमें शमूलियत करनी है। वहाँ पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हमसे बन पाए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जितनी मेन रोड्स हैं, जितनी मेन आर्टरीज हैं, वो उनको दोबारा से कारपेट करवा दिया गया है। आज या कल रात तक मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी पैच है हमारा DIG ऑफिस से लेके ये टिब्बा बाबा फरीद तक, वो भी वहाँ पे भी मशीनरी है। रात 1 बजे मैं वहाँ पे खुद खड़ा था कि आज अभी काम स्टार्ट होना, बट वो नहीं हो सका मानसून की वजह से। तो मुझे लगता है कि आज वो भी फिनिश टच हो जाएगा। लाइनिंग प्रॉपरली हम करवा देंगे। स्ट्रीट लाइट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मैंने कहा है रात 1 बजे तो मैं खुद चेक करता रहा हूँ कि टोटल स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। अभी हमने इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने PHA के DG को कहा हुआ है, कल वो खुद विजिट करेंगे। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंजबख्श के हवाले से इजलास। सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने की। DC लाहौर का कहना है कि अज़ादारों और ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में SP सिक्योरिटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। शुरका ने मुहर्रमुल हराम के बेहतरीन इंतजामात पर ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख में बेहतरी ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस की कामयाबी का नतीजा है। जबकि मेंबरान अमन कमेटी ने कहा कि अमन अमान के क़याम में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाक फौज को सरहद पार दुश्मन को शिकस्त देने पर सलाम पेश करते हैं। शुरका ने इस्तदा की कि चेहरम और उसके जुलूसों के रूट्स पर बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। रूट्स पर पैच वर्क, लाइटिंग और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंजबख्श इंतहाई अहम मवाक़े हैं। आज़ादारों और ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी पर इजलास हुआ। इजलास में दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में CCPO ने चाइनीज़ और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुनज़्ज़म इक़दामात करने की हिदायत की। CCPO का कहना था कि सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग और वन विलिंग की तशहीर करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए।
CCPO نے SHO مسلم ٹاؤن کو جوئے کے نیٹ ورک کے کلا کما پر شاباش دی اور انعام دینے کا اعلان کیا۔ غیر تسلی بخش کارکردگی پر DSP آپریشنز ٹاؤن شپ سرکل کو لیٹر آف ڈسپلے جاری کیا گیا ہے۔ CCPO کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین کی ناقص شہادت سے منشیات کے مقدمات میں ملزمان کی بریت پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ CCPO نے DSP لیگل کو منشیات سے متعلقہ مقدمات کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا۔ اب یہاں پر بات کریں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لاہور میں ہفتہ آزادی مہم کے تحت مارکہ حق آزادی کارواں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ہفتہ آزادی مہم کے تحت مارکہ حق آزادی کارواں کا آغاز شاد باغ ٹوکے والا چوک سے ہوا۔ کارواں تاجپورہ چوک، کاپر سٹور، شالیمار چوک، مغل پورہ سے ہوتا ہوا صدر گول چکر پر اختتام پذیر ہوا۔ کارواں کے راستے میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ شہریوں نے پھول نچاور کر کے کارواں کا والہانہ استقبال کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری مزمل اقبال ہاشمی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ پنجاب کے صدر چودھری محمد سرور نے کہا، پاک فوج نے جو بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص میں شکست دی وہ ہماری قوم کی وحدت و قوت کی مثال آپ ہے۔ ہماری آواز جو پیغام ہم پہنچانا چاہتے تھے کہ بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی کے بعد اب قوم ایک مٹھی ہو جائے، یہ متحد قوم ہی ایک فاتح پاکستان کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ ہم اس آواز کو پیغام کو پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی اس سے زیادہ قوت سے الحمدللہ یہ پیغام پہنچے۔ ہم ایک متحد قوم بن کے، جیسے تحریک پاکستان میں سارے مسلمانوں نے ایک ہو کر پاکستان بنایا تھا اور مارکہ حق میں آپریشن بنیان المرصوص میں بھی ہم ایک قوم تھے، تو ہمیں مشکل متحد ہونا ہے۔ کارواں میں لاہور کے صدر انجینئر عادل خلیق، صدر تحصیل شالیمار عمر فاروق گجر، شائمان بٹ، معاذ اشتیاق، حافظ نوید، عمر عزیز، حافظ ارشد سندھو سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی قیادت میں جشن آزادی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی عبدالستار ایدی روڈ سے یونین ڈیولپرز تک نکالی گئی۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیورز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منائیں گے۔ ریلی کے بعد رکشہ ڈرائیورز کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین کی جانب سے پارٹی کے عہدیداران کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ کے شہداء کو، پنجاب پولیس کے شہداء کو، پاکستان کی عوام کے شہداء کو، ہر وہ شہید جو پاکستان کے لیے قربان ہوا ہے، آج کا دن ہمارا ان کے نام ہے۔ اور خصوصاً ہم مارکہ حق میں حصہ لینے والے پاک فوج کے، نیوی کے، ایئر فورس کے تمام جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں رواداری تحریک کے زیر اہتمام اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین رواداری تحریک سیمسن سلامت، کیتھرین سپنا، کرامت، عاشر سفراز، اسمارہ داؤد شریک ہوئے۔ شرکا نے مذہبی ہم آہنگی، اقلیتوں کے حقوق اور ووٹ کی طاقت کی فراہمی بارے تفصیلی گفتگو کی۔ شرکا نے حکومت سے اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ نیشنل مینورٹی ڈے کی مناسبت سے پنجاب اسٹیڈیم میں اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انسانی حقوق و اقلیتی امور اور کرسچن کونسل پاکستان کے اشتراک سے فیسٹیول منعقد ہوا، جہاں کک باکسنگ، پاور لفٹنگ، ایتھلیٹکس، فٹ بال، فٹ سول، ایروبکس، بیڈمنٹن کے مقابلے کروائے گئے۔ مقابلوں میں لاہور بھر سے 35 چرچز سے 800 کے قریب بچوں نے مقابلوں میں شرکت کی۔ میں نے پارٹیسپیٹ اسٹیج میں کیا ہے اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور میں نے ون کیا ہے اس میں ریس میں۔ میں نے یہاں پہ 100 میٹر ریس میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں سیکنڈ پوزیشن میں آئی ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں، آج مائنورٹی ڈے بنایا جا رہا ہے، انتظامیہ نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ گورنمنٹ کو ایسے کام کرنے چاہیے ٹو پروموٹ دیئر اسٹوڈنٹس ان اسپورٹس۔ یہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ ساری جیسے میجورٹیز ہیں، مسلم، کرسچن، ہندو، یہاں پہ سارے اکٹھا ہوئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے ہی پروگرامز اور ہونے چاہیے۔ ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، لائک مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور ہندو بھی، یہاں پر سب مکس ہیں اور مکس اپ ہو کے باہمی کے ساتھ سب یہاں پر کھیل رہے ہیں۔ ہم سب یہاں پر مل کے گیمز کھیل رہے ہیں، اٹ لک سو گڈ اور ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا اور ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، یا اٹس سو گڈ۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، پاکستان میں اقلیتیں محفوظ اور پاکستان کے پرچم تلے ہم سب ایک ہیں۔ میں اپنے بچوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی، جہاں پہ آج
मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से आज यहाँ पे हिंदू भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, मसीही भी मौजूद है, मुस्लिम भी मौजूद है। और बहुत अच्छा लग रहा था जब मिली नगमे गाए जा रहे थे और सब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहा अकलियतों के नुमाइंदगी के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदाम को सराहते हैं। ऐसी काविशें मजीद होनी चाहिए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर रेस क्लब में जश्न आज़ादी कप का इनेकाद। फ्लैश नामी घोड़े ने आज़ादी कप टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर रेस क्लब इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से जश्न आज़ादी कप का इनेकाद किया गया। सन ऑफ सुल्तान, ब्रिगेडियर, डाकू, गोल्डन हार्ट, कलवेयर, अलशौक, येस्टरियर और फ्लैश नामी घोड़े ने आज़ादी कप टाइटल के लिए घुड़दौड़ में हिस्सा लिया। एलिजाबेथ और दुबई एंजल्स नामी घोड़ी भी जश्न आज़ादी कप दौड़ में शामिल हुई। जश्न आज़ादी कप का टाइटल फ्लैश नामी घोड़े ने अपने नाम किया, जबकि सन ऑफ सुल्तान ने दूसरी और ब्रिगेडियर नामी घोड़े ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्रेटरी लाहौर रेस क्लब शेख शहजाद अख्तर ने फातिहा घोड़े फ्लैश के सवार बाबर रहमान को जश्न आज़ादी कप से नवाजा। फातिहा घोड़े के सवार और मालिक ने जश्न आज़ादी कप जीतने पर खुशी और मुसरत का इजहार किया। बहुत अच्छा लगा है जी, और अल्लाह पाक का करम हुआ है। मालिकों ने कूड़ा तैयार किया था और मुझे चांस दिया है, और अल्लाह पाक ने करम किया है कि मैं जीता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है, कप वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ी बात है इतने घोड़ों में घोड़े का जीतना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की हुई थी तो इस वजह से जीता है घोड़ा। एक घोड़ा खवाया साहब ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਸ਼ਨ ਰਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਪ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, अल्लाह का मज़ा आया। आज जिसने आज़ादी का कप था ख्वाजा साहब के घोड़े माशाल्लाह 3 आए थे, 1-2 नहीं आए, अब एक सीजर घोड़ा जीता है, हमें बहुत खुशी हुई है। हम लोगों को यही कि अच्छी तरह इधर आया करें, एंजॉयमेंट किया करें। घुड़ रेस के शायकीन की कसीर तादाद जश्न आज़ादी कप घुड़दौड़ देखने रेस क्लब आई। शायकीन की जानिब से रेस क्लब इंतजामिया के इकदाम को सराहा गया। रुमेल अलियास, सिटी 42। पहली और पाकिस्तान यूथ कराटे चैंपियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंच गई। मुस्तकबिल के कराटेकास कहते हैं कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में होने वाली 2 रोज़ा चैंपियनशिप के अंडर 10 कैटेगरी में लड़कों में साहिवाल ने 4 जबकि लड़कियों में लाहौर ने 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अंडर 12 कैटेगरी में लाहौर ने लड़कों में 2 और लड़कियों में 3 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अंडर 14 कैटेगरी में लड़कों में लाहौर और फैसलाबाद ने 2-2 जबकि लड़कियों में कोयटा और लाहौर ने 2-2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अंडर 16 बॉयज में फैसलाबाद और कोयटा ने 2-2 जबकि लड़कियों में कोयटा ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल करने वाले नन्हे कराटेकाज हुज़ैफा और अयाना नाइल अरशद का कहना है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हदफ है। चैंपियनशिप को पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मुझे और हुज़ैफा को इस इवेंट में बुलाया और हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के लिए और अपने अपने प्रोविंस के लिए एक और गोल्ड मेडल लाया। जी मुझे बहुत मजा आया जब मैंने इंडिया को हराया और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है दुबई में और मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा और पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आगे मेरा फ्यूचर का प्लान है, मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल में भी सिलेक्टेड होंगी और अभी नेशनल में तो मैं हो गई हूँ, फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल लिया है। चेयरमैन कराटे फेडरेशन मोहम्मद जहांगीर का कहना है कि इस चैंपियनशिप से नया टैलेंट सामने लाने में मदद मिलेगी। हमारा जो ये हमने क्योंकि पिछले दिनों साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप हुई है, वहाँ पे हमारे 2 बच्चे जो हैं अंडर 10 में गोल्ड मेडल, अंडर 12 में बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता, तो हमने कहा हम अपने भी इधर करवाते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम था, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 500 से ज्यादा बच्चे आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मैच लगाए हुए हैं और उसके ऊपर कल से रेगुलर चल रहा है हमारा और आज इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। अपनी नौयत की पहली कराटे चैंपियनशिप में मुल्क भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अनारकली में लड्डू पेठी के स्टॉल से उठती खुशबू शहरियों को दावतें आम देने लगी। खुबानी की चटनी और सलाद से लड्डू पेठी का मज़ा दुबाला हो जाता है। अनारकली बाजार में भीनी भीनी खुशबू के साथ शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींचते लड्डू पेठी के कई स्टॉल्स मौजूद हैं। चने की दाल समेत दीगर दालों मसाला जात से लड्डू पेठी तैयार की जाती है। लड्डू पेठी बनाने वाले स्टॉल्स के ऊपर ही सिल बट्टे से दालों और मसाला जात को पीसते हैं और लड्डू तले जाते हैं। खुबानी की मीठी और पुदीने की तीखी चटनियों के साथ सलाद भी इस रिवायती डिश का हिस्सा बनता है। लड्डू पेठी खाने वालों का कहना है कि यह डिश खालिश अशिया से तैयार की जाती है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ती। बड़े अरसे से खा रहे हैं, बड़ी लजीज है। चने की दाल, माश की दाल और आलू बुखारे और इमली की जो चटनी है
और ख़ुबानी भी इसमें होती है। ये बड़ी हाज़मेदार है, बड़ी फ़ायदे मंद है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है और ये हमारी रीजनल प्रोडक्ट है। लाहौर की जो है एक सकाफ़ती चीज़ है और बड़ी मज़ेदार है। शहरी कहते हैं कि बच्चे बड़े सब हर मौसम में लड्डू पेठी से महजूज होते हैं और लज्जत से भरपूर डिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। माशाल्लाह जायका टेस्ट बहुत प्यारा है और फर्स्ट टाइम मैं इनको खा रहे हैं तो पता लग रहा है कोई चीज़ है और लज्जतदार। लड्डू पेठी दहाइयों पुरानी डिश है जिसके अज्जा में वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया, लेकिन इसका जायका हमेशा से ही ख्वाबों के शौकीन अफराद का मनपसंद रहा है। चने की दाल, कई तरह के मसाला जात और खुबानी की चटनी से तैयार होने वाली लड्डू पेठी कैमरामैन टीपू ने तो चख ली, अब मैं भी चख के आपको बताता हूँ। वाह, इंतहाई लजीज लड्डू पेठी अनारकली फूड स्ट्रीट के अंदर यहाँ पे सेल की जा रही है। बड़ी तादाद में लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन टीपू के साथ उस्मान खादिम कंबोज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।